Hello dear students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, today we are going to revise our fourth chapter, that is business services. As we know, business includes two activities, that is goods and services. Goods are those which are physically present, which we can see and buy from the consumers. But services are those for which are done for the benefit of an individual. We can only take the benefit of the services, but we cannot see the services. For example, the services of the doctors, services of the engineers, the benefit of these services can be utilized, can be availed, but the services cannot be seen. So, let us see the topics which are covered in the particular chapter. If we talk about the business services, in introduction part, we will study what is a business services, what all things which are provided by a service supplier. Next, we will study the types of insurance. As we know, insurance are those which are done to cover any calamities, any hazards which occurred in the life of an individual or related to the goods of the particular sellers or the manufacturer. The insurance are of the following types, that is the life insurance, which is ultimately related to the life of an individual. Second is the fire insurance. Fire insurances are done to protect the goods from any hazard that may be due to any natural calamity. It may be not maybe the man-made activities, but it should be a regular or it may be a natural activity. Marine insurance. Marine insurance are generally done to protect the goods from sinking while traveling from one country to other country. While we are importing or exporting the goods from one country to the other country, then the marine insurances are done. Now, the next is the difference between all types of insurance, that is the life insurance and the fire insurance and marine insurance. And the last one is the health insurance. It is related to the health of an individual. If we are suffering from any diseases, then the expenses of the hospitals are covered by the life insurance companies. The amount may be directly paid to the hospitals, or it may be reimbursed after you make the expenses of your diseases. It may be depends upon the policies of the life insurance company. Next are the types of banks, that is we all know the common types of banks, that is the commercial banks, the retail banks. These are the types of banks which are providing different services. And what are the overall facilities provided by the bank, that is check facilities, ATM facilities, agency facilities. Agency functions are also provided by the bank, such as the payment of utility bills, the payment of insurance premiums. All these functions are performed by the banks. And the next one is e-banking, that is electronic banking. We have understood in our previous video the difference between the traditional and the e-banking. What is the functions which are provided by the bank in the traditional banking, and what are the functions which are now being provided by the e-banking facilities. And the next one are the insurances. We have already understood the functions of the insurance and the principles of insurances, that what all functions are provided by the insurance companies. Okay. And the next and the last topic of this is postal services, that is the sending of post by the post office. We are not talking about the private courier agencies, we are talking about the registered postal services, that is the post office services which is provided by the post offices. Okay. And about the business services, e-banking, and the most important thing is NEFT and RTGS, that is National Electronic Fund Transfer, or RTGS is the amount which is transferred to the account of an individual on the immediate basis, that is RTGS. Now, there are following points to remember in the particular chapter. The first one is goods. The goods which are physically present with the shopkeeper, with the manufacturer, which is ultimately sold to the consumers according to their requirements. The goods are the physical products which we are going to buy from the manufacturer according to our requirement. And the next one is the services which depends upon
the needs and the requirements of the individuals. These services are intangible, that means they cannot be seen, but their benefits can be analyzed or be utilized. देखिए क्या होता है, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर का. जब हमें कोई डिजीज़ होती है और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, हम उसके ट्रीटमेंट के बाद ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है या खराब है. देखिए उसने कोई आपको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया, अपनी सर्विसेज दी, तो उस सर्विसेज के बेसिस पे कितना हमें बेनिफिट हुआ, कितनी हमारी डिमांड्स फुलफिल हुई, वो चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छी सर्विस होगी या फिर खराब सर्विस. उस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. If we talk about the nature of services, first one is intangible. That means service cannot be seen. हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसके benefits को analyze किया जा सकता है. For example, हम बात करें बहुत कॉमन सा टेलीकॉम सर्विसेज. हम बोलते हैं कि यार इस मोबाइल की सर्विसेज अच्छी हैं, इस कंपनी की सर्विसेज अच्छी हैं, और कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज की सर्विसेज अच्छी नहीं है. तो वो चीज़ हमने कैसे एनालाइज किया? भाई हम देख तो नहीं सकते कि ये चीज़ सर्विस है, ये चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट तो है नहीं, इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, हम उसे देख तो सकते नहीं है, लेकिन कैसे एनालाइज किया गया कि ये सर्विसेज अच्छी हैं, कि कितना बेनिफिट, कितना पर्पस उसने हमारा सॉल्व आउट किया, उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंसी. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग इट्स सेपरेट डिमांड. मतलब हर लोगों की ज़रूरत अलग है, हर लोगों की डिमांड्स अलग हैं, हर लोगों की नीड्स कैसे फुलफिल होनी है वो क्राइटेरिया भी अलग है. हो सकता है किसी लोगों की बहुत बेसिक सी नीड्स हो, बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हो. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, अगर कई सी लोगों का आपने देखा होगा जो बहुत ही लो कैटेगरी वाले लोग हैं या फिर जिनका इनकम लेवल स्केल इतना अच्छा नहीं है, उनके पास आपने जनरली कीपैड या फ़ोन्स देखे होंगे, क्योंकि उनका पर्पस ज़्यादा कुछ यूज़ करना नहीं है, बस उनका पर्पस ये है कि वो कनेक्टेड रहें लोगों से. लेकिन अगर कोई एक रिच पर्सन को उससे कंपेयर किया जाएगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, अलग होगी. क्यों? क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड, अब उसको सिर्फ कॉलिंग से पर्पस नहीं है, उसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई भी, भाई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास कैपिटल तो है, लेकिन मेरी क्या है, नीड्स, जो मेरी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होनी चाहिए. तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. नेक्स्ट वन इज इनसेपरेबिलिटी. दैट मीन्स सर्विस receiver and service provider cannot be separated. The time we are providing the services, the individual who is receiving the services should present at that place. अब क्या पर्पस है कि भाई देखिए सर्विसेज जिसको दी जा रही है, जो उस सर्विसेज को परचेज कर रहा है, वो पर्सन वहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमने सर्विसेज स्टोर कर ली. इस गुड्स को तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता. ओके, जैसे हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन टिकट वो क्या है, एग्जाम्पल है गुड्स का. लेकिन जो ट्रेन से हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो इंडियन रेलवेज हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, वो सर्विसेज हमें उसी दिन लेनी पड़ेगी जिस दिन के लिए हमने वो सर्विसेज बुक की है. उसको ना तो स्टोर किया जा सकता है, ना उस चीज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है. ओके, inventory, that means inventory means the stock. That means we cannot keep the services, we cannot store the services with us. जिस टाइम सर्विसेज दी जा रही है उसी टाइम उस सर्विसेज को लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं हमने आज सामने वाले ने सर्विस दे दी और हमने उसको स्टोर करके रख लिया, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ओके, and the involvement, that means the involvement of an individual is required in providing the services. means ऐसा नहीं है जिस तरह की सर्विस सामने वाला हमसे डिमांड कर रहा है, अगर हमारे पास वो सर्विसेज देने के पोटेंशियल हैं तो ही क्या होगा, सर्विसेज दी हुई मानी जाएंगी, नहीं तो नहीं माना जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द बैंकिंग. एज वी नो द बैंक्स, the functions of the banks are generally running for providing the financial services, that is the capital services. ऐसी जो भी सर्विसेज जो मनी से रिलेटेड हैं वो किसके अंदर आती हैं, बैंकिंग के अंदर आती हैं. If we talk about banking, the process of banking starts with the deposits of the funds. The small household individuals, the industrialist, the entrepreneurs, all these deposits their funds in the bank, and bank with these funds provides various services. First one are the commercial banks. Commercial banks, or we can say the retail banks, these are the general banks in which we deposit our small amount. आपने भी जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा तो ऐसा तो नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स रखे हों. जो छोटे छोटे फंड्स होते हैं जो हाउस होल्ड के पीपल्स कलेक्ट करते हैं, उन बैंक्स को क्या बोला जाता है, कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है.
ये बैंक्स आपको बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न देती हैं और जो फंड्स ये लोग कलेक्ट करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उनको बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव बैंक्स। These are the banks who provides the services to the big corporates, big industries. ये बैंक्स ऐसी बैंक्स होती हैं जो आपको बड़े अमाउंट में लोन्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग एंटरप्रेन्योर्स, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो फंड्स की आपको ज़रूरत है, भाई पूरी कैपिटल तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन यू रिक्वायर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड दीज फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स, these are the banks who are involved in providing specialized services. For example, loan services, for example, insurance services. These are some specialized categories which are provided by the specialized banks. Central banks or we can say the RBI, Reserve Bank of India. These are the banks who are controlled all the commercial banks of the economy. मीन्स ऐसी बैंक जो सारी बैंकों को कंट्रोल करती हैं। आपको पता होगा कि अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी बैंक्स को रन होने के लिए परमिशन ग्रांट करती हैं और द कैपिटल यू आर इन्वॉल्विंग इन योर बिजनेस यू हैव टू डिपॉजिट द ट्वाइस ऑफ दैट अमाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर दी सिक्योरिटी नॉर्म्स। मीन्स क्यों? आपने अगर मान के चलिए बैंक ओपन कर भी ली, लोगों ने आपके पास डिपॉजिट करवा भी दिया अपना पैसा और अगले ही दिन आपने बैंक क्लोज करके आप वहां से भाग गए, तो उन लोगों को तो सिक्योरिटी चाहिए। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जितना भी अमाउंट आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं उसका डबल अमाउंट कहाँ रखता है, अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखता है। ओके, now the functions of the commercial banks, as we know, the first one is acceptance of deposits. That means it collects the funds from the small depositors, just we and you. It lending the funds in the form of loans, means जो भी loans की requirement होती है, चाहे हम लोगों की हो, छोटे लोगों की, छोटे बिजनेसमैन की या बिग एंटरप्रेन्योर्स की, सारे लोगों की डिमांड्स जो लोन की है उनको फुलफिल करने का काम भी कौन करता है, हमारी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। चेक फैसिलिटीज, दैट मीन्स द पेपर विच इज इक्विवेलेंट टू कैश। आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक बुकलेट दी जाती है, चेक बुक जिसे हम बोलते हैं। वो क्यों दी जाती है भाई? देखिए क्या है, अगर आप कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहते या फिर आपको कैश ट्रैवल करना है या फिर कैश लॉस होने का डर है आपको कि यार इतना बड़ा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 5 लाख 6 लाख 7 लाख, इट इज ह्यूज अमाउंट एंड यू कैन नॉट कैरी दैट अमाउंट अलॉन्ग विथ यू, सो यू कैन ड्रॉ द चेक ऑन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आप उसके नाम से चेक ड्रॉ कर देंगे। चेक में क्या फैसिलिटी होती है? दो चीज, काउंटर पे और द अकाउंट पे चेक्स। काउंटर पे का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्सन का नेम उस चेक में लिखा है उसी पर्सन को या फिर उसके अलावा कोई भी पर्सन उस चेक को लेकर जाएगा, वो वहाँ पे कैश काउंटर पे हो जाएगा। बट अगर हमने नाम लिखकर बैंक उस पर्सन का नाम लिखकर अगर हमने उसको डबल क्रॉस कर दिया तो वो अमाउंट सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज रेमिटेंस ऑफ फंड्स, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द स्मॉल पीपल्स, टू द इंडिविजुअल पीपल्स। मतलब अगर कोई भी पैसे की ज़रूरत हो तो वो बैंक्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हमें कोई हाउस परचेज करना है, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है तो वो भी बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल इज फुलफिल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। Allied services or the agency services. Allied services or agency services are also provided by the banks. For example, deposit of the utility bills, our electricity bills, our insurance premium, our telephone bills, all these are the agency functions which are provided by the commercial banks. Now the next one is the insurance. Insurance are the activities or the facilities which are provided by the insurance company to protect the individual from any calamity. Functions of the insurance, what overall functions are provided by the insurance company? That is providing certainty. That means if in the future you will incur any loss, there is certainty that the individual, the insurance company will provide you the defense or the protection from that calamity. Protection, as we know, the main functions of the insurance company is to give the protection to the individuals. It may be related to their life, it may be related to any commodity, any type of goods, it may be related to the health of an individual. Sharing of risk, that means the risk an individual is possessing is shared with the insurance company.
Insurance company is generally liable to pay the amount of risk which is covered under the contract of insurance. जो भी जितना भी अमाउंट उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए लिखा होगा उतने अमाउंट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी. ओके. Assist in capital formation, that means insurance company guide you to form the capital. Means ये आपको ये चीज़ बताते हैं कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकता है. तो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. Principles of insurance, that is utmost good faith, means while you are taking the insurance there is a proper contract between you and the insurance company. मीन्स इंश्योरेंस लेते समय आपको पूरी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती है. अगर आपने कोई भी फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताए और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा ली तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं करती. ओके. तो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल फ्लैश्ड इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी वाइल परचेजिंग और बाइंग द इंश्योरेंस और डूइंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. दैट मीन्स the individual who is taking the insurance should has its interest in that particular commodity. मीन्स जिस भी गुड्स का मैं इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट उस कमोडिटी में होना चाहिए. जिस भी गुड्स का इंश्योरेंस अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होती. तो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको डर है कि यार ये चीज़ अगर डैमेज होती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो जाएंगे या फिर इस चीज़ से मेरा बिजनेस इफेक्ट भी हो सकता है, तो उसी चीज़ के लिए क्या किया जाता है? इंश्योरेंस कराया जाता है. इंडेमनिटी. Indemnity means to protect an individual from any risk. That means a insurance company becomes an indemnifier. It protects the individual from any kind of hazards. Subrogation. Subrogation means the involvement of an individual. Means जब कोई भी calamity आती है तो लॉस किसको हुआ है? आपको हुआ है. बिजनेस किसका था? आपका था. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उस जगह आकर खड़ी हो जाती है. मीन्स जितना भी लॉस है वो कौन अपने ऊपर ले लेता है? इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर ले लेती है. नाउ द लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट इज ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट ऑफ दैट इंडिविजुअल हु हैज एक्चुअली possessed दैट लॉस. नेक्स्ट वन इज contribution. Contribution means to contribute in the premiums. Means the individual who is taking the insurance should contribute the premium to the insurance company. देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड्स आएंगे कहाँ से? फंड्स वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे. जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है वो प्रीमियम पे करेंगे और प्रीमियम से जो फंड्स कलेक्ट होगा वही पैसे किस लिए काम आएंगे? किसी भी पर्सन के लॉस को कम करने के लिए. नेक्स्ट वन इज मिटिगेटिंग. मिटिगेटिंग इज जनरली कवरिंग ऑफ लॉस. दैट मीन्स द अमाउंट यू हैव टेकन द इंश्योरेंस. अब देखिए ये बात आती है हमारे सामने कि यार इंश्योरेंस मैंने लिया, किसी गुड्स की वैल्यू थी 20 लाख और मैंने इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा पेमेंट देगी क्या? बिल्कुल भी नहीं. जितना भी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस कराया है, द अमाउंट यू हैव टेकन एज एन इंश्योरेंस इज ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. Now there are few types of insurance which are covered in the chapter. The first one is whole life policy. That means the amount of the insurance is paid only after the death of the individuals. Means इस particular type of policy में जो amount दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? नॉमिनी को. आपकी डेथ के बाद ही अमाउंट आपको मिलेगा. ओके. एंडोमेंट पॉलिसी. एंडोमेंट पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी का अमाउंट क्या किया जाता है? या तो आपकी डेथ के बाद या फिर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड पीरियड. मीन्स जिस टाइम आपका वो पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको पेमेंट दे दिया जाएगा अगर आपको कुछ नहीं होता है तो. लेकिन मीनवाइल इफ़ यू इनकर्स अ डेथ, इफ़ यू इनकर्स एनी परमानेंट डिसेबिलिटी या ऐसा कोई भी सिनेरियो आता है तो उस केस में आपका जो नॉमिनी होगा उसको वो अमाउंट पे ऑफ कर दिया जाएगा. Joint life policy. When the family members collectively takes the single insurance policy. क्या होगा? जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर किसी भी एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन के नॉमिनी को और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको इंश्योरेंस का अमाउंट पे ऑफ कर दिया जाता है. Next one is annuity policy. Annuity policy are those policies which are
paid in the form of installments. That means the whole amount is not paid simultaneously or collectively the amount is not paid, but it is paid in the installments according to the duration fixed by the insurance company or the insured person. Children's endowment policy. These policies are done for bearing the expenses of the marriage of the children's. मीन्स जितना भी एक्सपेंसेस उनकी मैरिज पे होगा ये इंश्योरेंस उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है कि जितना भी एक्सपेंसेस मैरिजेस में कवर होगा वो सारा एक्सपेंसेस पे कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फायर इंश्योरेंस. एज वी नो फायर इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम द फायर. Now that fire should be natural, not the man-made fire. अगर ऐसा हो गया कि भाई आपको लॉस हो रहा है, आप चाह रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करे और आपने खुद से सारे सर्कमस्टेंसेस पता करने के बाद खुद से उस गुड्स को जला दिया, तो उस केस में फायर इंश्योरेंस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं रहेगी. अगर सिचुएशन नेचुरल कैलामिटी की है, नेचुरल डिजास्टर की है, देन ओनली द फायर इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू एन इंश्योर्ड पर्सन. Now the next one is transportation. As we know, transportation means moving of goods from one place to another. That is from the place of manufacture to the place of consumption. Next one is warehousing. Warehousing means to protect the good or preserve the goods while they are manufactured until they are ordered by the consumers. देखिए क्या होता है, वेयर हाउसिंग के अंदर हम गुड्स को रख देते हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जिस टाइम गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उसी टाइम उसकी डिमांड आ जाए. तो जब हमने, और ऐसा भी नहीं है कि भाई डिमांड नहीं आ रही तो हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो कंपनीज या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती क्या है, अपना खुद के वेयर हाउसिंग सेटअप करती हैं या फिर वेयर हाउसिंग को रेंट पे परचेज कर लेती हैं. उस केस में क्या होगा, जो भी गुड्स हमने बनाए, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करके कलेक्ट हो गए हमारे पास, उन गुड्स को वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है और जिस टाइम उन गुड्स की डिमांड आएगी उसी टाइम उन गुड्स को वहाँ से रिमूव करके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुँचा दिया जाए. Now there are few types of warehousing which we have already discussed. The first one is the private warehouses. If an individual has purchased or formed the warehouse, then it is known as private warehouse. अब private warehouse क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जिस भी पर्सन का वो वेयर हाउस है सिर्फ उसी के गुड्स वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं. किसी भी नॉर्मल पब्लिक को वहाँ पे गुड्स स्टोर करने की परमिशन नहीं होती. तो जैसे हमने बात करा था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने गुड्स को वेयर हाउसिंग में रख देती हैं, तो वो चीज़ किस में आएगी? प्राइवेट वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट वन इज पब्लिक वेयर हाउस. व्हेन द गुड्स ऑफ द पब्लिक इज स्टोर्ड, मीन्स कोई भी पर्सन वहाँ जाकर वहाँ का रेंट पे कर गुड्स को स्टोर कर सकता है. ओके. Third one is bonded warehouse. These are generally warehouses of the custom departments. When goods are imported from the other countries, then the goods, meanwhile they are cleared by the particular individuals, the goods are stored in that types of warehousings. Okay. So the goods cannot diminish their values, the goods cannot be destroyed. ओके. जिस टाइम तक वो गुड्स क्लियर नहीं किए जाते, जिस टाइम तक वो कस्टम ऑफिसर्स की कस्टडी में है, उस टाइम तक उन गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस में. गवर्नमेंट वेयर हाउसेस. These warehouses are generally controlled and managed by the government. As we know, Food Corporation of India, ये एक ऐसे वेयर हाउसिंग होते हैं जहाँ पे गुड्स को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है. मीन्स जो भी एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नमेंट करती है. नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट वेयर हाउसेज. दैट इज कॉर्पोरेटिव मीन्स these warehouses are generally managed by the cooperative societies. As we know, the cooperative societies are NGO, non-governmental organizations. So the goods which are provided for the welfare of the societies are get stored in this types of warehouses. Now let's study the functions of the warehousing, that is consolidations. That means the warehousing collects the goods from the small manufacturers and ultimately makes the bulk of the goods and delivered it to their particular individuals or the consumers. Break the bulk, that means the warehousing break the goods into the small units and ultimately deliver to the consumers. Means अगर कोई भी goods बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है और उसकी डिमांड इतनी क्वांटिटी में नहीं आ रही है, तो गुड्स को क्या किया जाएगा? स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा और स्मॉल पार्ट्स को अल्टीमेटली सेल कर दिया जाएगा अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक.
Stock pilling, that means it is the duration between the actual manufacturing and the delivering of the goods. मीन्स जिस टाइम गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ और जिस टाइम उसकी डिमांड आ रही है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को जो कवर अप किया जाता है वेयर हाउसिंग से, वो चीज़ क्या होती है? स्टॉक पिलिंग. वैल्यू एडेड सर्विसेज, दैट मीन्स द पैकिंग ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. देखिए, इफ goods is to be sold in the local territory, then it is perfectly fine, we can directly supply the goods. But if we want to sell the goods to the other countries, to the other territories, then goods needs to be packed very carefully so that goods do not be deteriorated or damaged. So ये सारी सर्विसेज जो पैकिंग की हो गई, लेबलिंग की हो गई, ये सारी सर्विसेज भी हमें वेयर हाउसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके. प्राइस स्टेबलाइजेशन, दैट मीन्स the warehousing stabilizes the demand and the supply, the price of the goods. That means जितनी डिमांड आ रही है उस हिसाब से गुड्स को क्या किया जाता है? सप्लाई कर दिया जाता है. एंड द फाइनेंसिंग, दैट मीन्स द warehousing also provides the finance, the capital to the manufacturer in the security of the goods. मीन्स आप अपने गुड्स को रख दीजिए, गुड्स उनकी सिक्योरिटी में रखा रहता है, और जितना गुड्स आपने वेयर हाउसिंग की सिक्योरिटी में रखा उतना ही अमाउंट आपको वहाँ से मिल जाता है एज अ फॉर्म ऑफ लोन. और जिस टाइम आपके पास कैपिटल है, या तो आप वो गुड्स वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, अगर आपको गुड्स वहीं पे रखना है तो आप वेयर हाउस का रेंट पे करके भी वहाँ पे गुड्स को स्टोर कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सर्विसेज? Explain their distinct characteristics. As we know, the services are those things which are provided to a consumers. These are separately identifiable and essential for fulfilling the demands of an individual. If we talk about the characteristics, that is intangibility. That means we cannot see the services, we just feel the benefit of that services which is provided by an individual person. The next one is inconsistency. That means it depends upon the needs of an individual. It depends according to the demand of a particular person. अब देखिए क्या होता है, हर पर्सन की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वही चीज़ क्या हो जाती है हमारे लिए? इनकंसिस्टेंसी. ओके. The next thing is inseparability. That means the individual who is taking the services should present at that particular place. Means उस person का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay? Inventory. That means services cannot be stored. We cannot store the services, we just have to utilize that services at that particular point of time. Means जिस टाइम के लिए वो सर्विसेज ली गई है उसी टाइम हमें उसको स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हमें उसी टाइम उसको कंज्यूम करना पड़ेगा. अगर हमने उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो सर्विसेज ली हुई नहीं मानी जाएगी और उस सर्विसेज का अल्टीमेटली कोई भी पर्पस नहीं निकलेगा. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट. That means the important characteristic is the participation of consumers. That means if you want to provide the services to a consumers, you have to set up a separate department who is ultimately responsible for providing the services. देखिए क्या होता है, अगर आपने कोई भी व्हीकल परचेज किया, ठीक है, और उस व्हीकल के साथ आपको जो फ्री सर्विसेज मिल रही है, उसके लिए जो सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, वो अलग सेटअप किए जाते हैं, शोरूम से बिल्कुल अलग. ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रहा है. तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसको अलग रखा जाता है और जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होता है उसको अलग रखा जाता है ताकि कंज्यूमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain the functions of the commercial banks with an example of each. First one is the collection of deposits. That means the main functions of the banks is started with the collection of funds. अगर बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे, कैपिटल ही नहीं होगी, तो कैसे बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करवा पाएगी? कोई भी फैसिलिटीज़ अगर बैंक को प्रोवाइड करनी है तो उनके पास फंड्स होने चाहिए, और वो फंड्स कहाँ से आएगा? हमारे जैसे और आप जैसे कंज्यूमर्स से. ठीक है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्मॉल सेविंग्स बैंक को देंगे, बैंक उन पैसों को अपने पास रखेगा, आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो अभी जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करिए वो करिए 3.5%, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक आपको इंटरेस्ट देती है. लेकिन जो बैंक के पास फंड्स कलेक्ट हुआ
उस फंड्स को बैंक यूज़ करती है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, आपको अलग अलग टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बैंक आपको उस फंड्स को यूज़ किया जाता है। और जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है। तो वही जो डिफरेंस आया, जो इंटरेस्ट आपको मिला और जो इंटरेस्ट बैंक ने आपसे चार्ज किया, उन दोनों के डिफरेंस का जो आता है अमाउंट, वही चीज़ क्या हो जाती है, बैंक की इनकम काउंट होती है। Next thing is granting of loan. As we know, the banks provide loans to various individuals. That means to provide the loans to the small people, small individuals for purchasing of house, for running of the business, and to the big entrepreneurs for setting up of industries. These are the loans which are provided by the commercial banks. Next one is collection of checks and bill. That means the bank collect the bills on your behalf. बैंक्स कलेक्ट द चेक ऑन योर बिहाफ। जिस टाइम भी हम बैंक के पास कोई चेक लेकर जाते हैं, हम वो बैंक को ड्रॉप बॉक्स में डालाते हैं या फिर काउंटर में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक क्या करता है, उस चेक को, जिस भी बैंक का वो चेक है, उस ब्रांच पे बेचा जाता है। वहाँ पे भेजने के बाद जो क्लियरिंग एजेंसीज होती हैं वो उसको क्लियर करती हैं। तो ये जो सारा फंक्शन है चेक क्लियरिंग का, ये बैंक करती है आपके बिहाफ पे। तो बैंक क्या करती है, चेक का कलेक्शंस और आपके बिल्स का पेमेंट। मीन्स जितने भी आपके यूटिलिटी बिल्स हैं या फिर और भी आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, तो उनके बिल्स का पेमेंट, उनका इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो आप ईएमआई पे परचेज़ करते हैं, वो सारे फंक्शंस कौन करता है, बैंक्स करता है आपके बिहाफ पे। नेक्स्ट थिंग इज एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस मीन्स कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। मीन्स अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक क्या करती है आपके बिहाफ पे, अगर आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आपके बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्शन का भी काम करती है। सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट और पेंशन कलेक्ट करना। मीन्स अगर आप ओल्ड एज, आप रिटायर हो गए किसी भी कंपनी से और वो कंपनी आपको पेंशन पे करती है, तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो पेंशन डिपॉजिट कर दी जाती है और बैंक आपको वो अल्टीमेटली अमाउंट दे देती है। ओके, कस्टोडियन ऑफ सर्विसेज। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज अ कस्टोडियन फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स आपकी गुड्स को कस्टडी में रखना, जैसे लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के थ्रू। आप अपने कोई भी प्रीशियस आइटम्स, कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम्स बैंक के पास रख सकते हैं। बैंक आपसे उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस लेती है। इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। Now what is letter of credit? Letter of credits are generally gives the creditability of an individual. मीन्स अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं दूसरी कंट्री के साथ, मीन्स जापान के साथ या कोई भी ऐसी कंट्रीज जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो बैंक क्या करती है, बैंक आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताती है कि भाई अगर आपने इस पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो ये पैसा आपका सेफ है। दिस पर्सन इज हैविंग गुड क्रेडिटेबिलिटी, यू कैन डू द बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो उस केस में क्या होता है, उस पर्सन को बिलीव करना ईजी हो जाता है कि भाई ये पर्सन मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the concept of this chapter. We have also discussed the important topic of this chapter. So please revise your initial videos, previous videos, and keep studying and keep learning. Thank you and have a nice day.